Okay. Yes, we can see your screen. We can see the Google screen, I think. Okay, as I was saying, that justice in research or bioethics is equity more than equality. Okay? Okay. We don't see the presentation, Mujgan. Can you make sure that we're looking at the same screen? Because this is a sign-in screen. It says that verify this is you, Mishgan Owais Khan. The presentation is not open here. You need to go back, stop screen sharing, and then go back and share that presentation. Yeah, now I can see it. I can see task 2, understanding ethical research. Thank you. Okay. Now bringing everything together, okay, the subjects of bioethical questions are animals, humans, plants, and 4 principles that we went through are beneficence, non-beneficence, autonomy, and justice. In autonomy, remember we have a investigator's brochure and a consent form. You cannot make a consent form if you have not provided an investigator's brochure. Moving on because we have less time. Okay. Now that you've understood the main principles of GCP, bioethics, I would like to introduce you to GCP principles, which heads bioethical research in medicine, dentistry, and other medical subjects. Okay? GCP, as I said, is a part of IHC, International Harmonized Committee, and the E6 part. Okay? We sometimes use the E3 part as well, but E6 is what you should know at the moment to conduct and implement your own bioethical research. एथिक्स में हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम एथिक्स में ही बात करेंगे, बाकी चीजें हम साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी व्हिच इज रिक्वायर्ड. नाउ इन्वेस्टिगेशनल ब्रोशोर आपने बना लिया होगा, ठीक है, या माइंड में रखा हुआ होगा. नाउ कीपिंग दैट, मेक अ कंसेंट फॉर्म, ठीक है, which should include the inclusion criteria and exclusion criteria. ठीक है, you can do that, you can think on it. ठीक है, अपने पास question लिख लें. It's okay, you're not supposed to submit it to me right away. This is just your exercise. Informed consent में आपने patient को बोलना है कि आपका नाम क्या है, आपकी age क्या है, ठीक है, फिर major history क्या है. You're supposed to tell them कि you can leave this research at any time. You are not obligated to participate. You have, if you cannot provide consent, ठीक है, if the patient is unable to provide consent, then उनके जो legal guardians है, legal caretakers है, उनके लिए है to sign them. And understand this, no matter what happens, you cannot sign a consent form on your own. कि patient को sign करना नहीं आता, it's okay, I'll sign it. No, if you do that, you're breaching the ethical code. You cannot sign a consent form for any patient, any participant under any circumstances. ये है हमारे पास principles GCP के, ठीक है, there are 14 principles, ठीक है. Among those, I will be explaining to you the Review Independent Ethics Committee Independent Review Board. Why? Because this is what you need to implement and conduct the research. When you understand IRB and ethics, the ethical committee, you will understand how research is conducted. ठीक है, and then you can understand how different factors and how different principles fall into place. मैंने आपको ऊपर जो चीजें एक्सप्लेन की हैं वो आपका एथिकल कंडक्ट में आ गया है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आ गया है, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट में आ गया है, ठीक है. I've given you a crux of it. अब हम प्रिंसिपल 5 पे आ गए हैं. अब टास्क्स जो हैं हम रिव्यू बोर्ड को देने से पहले हम जब करते हैं,
तो आपको मैंने ऊपर 2-3 टास्क करा दिए, ठीक है। अब रिव्यू बोर्ड पे जाने के लिए ये 3 टास्क आपने करने होते हैं, ठीक है। अब आपका जो रिसर्च है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द रिव्यू बोर्ड। नाउ everyone that has written everyone that has, I'm not sure if anyone can see me. Yes, we can see you and we can see the screen also. Before entering the review board or the ethics board, there are some things that need to be considered by the entire investigational team. आप टीम लीडर हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप अगर सिर्फ बैठ के वहां पे रिसर्च कंडक्ट करने लग गए तो वो हो जाएगा आपका बायोएथिक्स ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायस आ जाएगा। बायस आ जाएगा, कंफाउंडिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, फ्लू फैला। So, other than you, there should at least be 2 to 3 medically sound professionals, ठीक है। या वो MBBS उन्होंने किया हुआ हो या उन्होंने BDS किया हुआ हो, ठीक है। अगर कोई ड्रग या डोजेज या कोई इस तरह के इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है जो फार्मास्यूटिकली अप्रूव हुआ है या भी अप्रूव होना है, यू आर सपोज टू हैव अ फार्मासिस्ट एज वेल। Now, before the trial starts, before the conduction of the trial, here is how you are going to assess your research, ठीक है। As an investigator, ठीक है, you are going to assess कि am I doing beneficence या am I a maleficent researcher, ठीक है। So you are going to check कि हाँ मेरा टाइटल जो है is it strong enough for a research, ठीक है। या मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ इट इज जस्ट फ्लफ रिसर्च, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द नेम कि भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं रिसर्च किस लिए कर रहा हूँ, योर व्हाट इज योर फोकस, द नेचर ऑफ द इलनेस दैट यू आर टारगेटिंग, इज इट एक्यूट, इज इट क्रॉनिक, इज इट रिवर्सिबल, इज इट टर्मिनल, और अगर ये टर्मिनल है तो इज इट इवन ट्रीटेबल, अगर ट्रीटेबल नहीं है देन व्हाट आर योर एम्स फॉर दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। This is how you're going to check your research before providing it to the IRB. Now everyone, ठीक है, ये different specifications है that you're supposed to check yourself. आपने जो टॉपिक लिखा, आपने जो IB बनाया, आपने जो कंसेंट फॉर्म बनाया, where do you lie among this, ठीक है। अब रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी आपने पेशेंट को दी कि नहीं, इंफॉर्मेशन given to the patients on risk and benefits आपने प्रोवाइड किया था कि नहीं, पेशेंट को वो इंफॉर्मेशन समझ भी आया है कि नहीं, या आपने सिर्फ वो अंग्रेजी में पढ़ा और पेशेंट ने सर हिलाया और आपने उसको बोला आ जाओ इधर आ जाओ, नहीं। यू आर सपोज टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड, यू आर सपोज टू अर्ज देम टू आस्क यू क्वेश्चंस। आपने जिस पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया क्या वो मेंटली कॉम्पिटेंट है या नहीं, इज ही एन अडल्ट या छोटा बच्चा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ऑटोनॉमी में देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि पेशेंट प्रेफर क्या कर रहा है, वो पेन की वजह से कर रहा है या आप जो पैसे आपने कोई प्राइस रखा है या आप ये कह रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, वो किस वजह से कर रहा है, आपने प्रेफरेंस देखनी है। Is patient doing it for the right reasons? Okay, that is clinical autonomy, which is on your part that you're thinking for the patient. If patient is mentally incompetent, are prior preferences known? Okay. If preferences are unknown, who is appropriate surrogate? ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास autonomy में आती है, and once again everything needs to be documented. Everything needs to be written down.
अच्छा, ऑटोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि अगर आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है और देयर इज अ न्यू रिसर्च ड्यूरिंग द ट्रायल या देयर इज अ न्यू रिसर्च आफ्टर यू प्रोवाइडेड द कंसेंट, यू आर सपोज्ड टू रिवाइज द एंटायर थिंग एंड टेल द पेशेंट and provide the patient the right to leave or continue the research. This is again quality of life. अच्छा, quality of life पे मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है. This is a long topic. ये उन drugs के लिए है जिसमें या टर्मिनल पेशेंट होता है, सुसाइडल पेशेंट होता है, या वो पेशेंट होता है जिसमें हमें पता होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कम है, अच्छी नहीं है, ठीक है. और उसको जज करने के लिए हमें 3 बंदे चाहिए होती है, ठीक है. एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए होता है, और एक उस पेशेंट का केयर गिवर चाहिए होता है. दिस इज जस्ट अ क्रक्स ऑफ इट. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल. फिर जस्टिस, डिस्ट्रक्टिव जस्टिस क्या है कि आपने, आपकी टीम ने या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपने प्रोवाइड की है उससे पार्टिसिपेंट को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, ठीक है. या दो दोस्त मिल के तीसरे को तो उठा के नहीं ले रहे. This is all disruptive justice. You're supposed to talk to your participants before selecting them. अब आपने सब कुछ रिव्यू कर लिया अपने पास, ठीक है. यू मेड चेक्स के हाँ भाई वेयर डू आई फॉल ऑन माय रिसर्च. यू मेड साइनॉप्सिस, आपने उसमें आईपी ब्रोशर और अपना सब कुछ ऐड कर लिया है. और अब आप जा रहे हैं आईआरबी के पास या एथिकल रिव्यू के पास. नाउ वन मस्ट आस्क कि आईआरबी है क्या और किसने इसको इतनी अथॉरिटी दी है कि ये बैठ के हमारे रिसर्च जज कर रहे हैं. भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा पता है. आई नो द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ दिस रिसर्च. Why is another person sitting back and judging me? Who has allowed them to judge me? This now GCP has allowed them to judge, ठीक है. GCP के ऊपर IHC has allowed them to judge you, and IHC में Declaration of Helsinki has allowed them to judge you. Now to form an IRB or IEC, there are minimum 5 candidates, ठीक है. 2 इंस्टीट्यूट के अपने होते हैं, 2 से 3, ठीक है. They can be any professor, MBBS डॉक्टर, ठीक है. एक आपके पास जो है नॉन मेडिक होता है, ठीक है. नॉन मेडिक, नॉन साइंटिफिक, नॉन टेक्निकल पर्सन, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने एक बैंकर उठा के उसमें डाल दिया, क्यों? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉर्मल पब्लिक इज गोइंग टू असेस दिस रिसर्च और दिस ड्रग और दिस ट्रायल. As medical sound professional we understand कि हाँ भाई these are the pros and cons and maybe ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक वो बंदा जो आम आवाम है, they do not know. So we need their brain as well, we need their sound as well in the research. That is why there has to be one non-medic person, ठीक है, and one professional which is not related to your institution, to the investigator or to your participants in any matter, ठीक है. ये होते हैं हमारे 5 IRB या IEC के heads. The difference between IEC and IRB is very small difference. IEC जो है ना, एथिकल कमेटी हमें रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमें अप्रूवल देती है और वो देखती है कि ये रिसर्च जो है ये सेफ है कि नहीं, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस है कि नहीं, इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट है कि नहीं, ठीक है. एंड IRB क्या करती है? IRB हमें थ्रू आउट द क्लिनिकल ट्रायल, थ्रू आउट द पीरियड वो कंटिन्यूसली चेक रखती है, ठीक है. IRB मॉनिटर्स जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ट्रायल आके चेक करते हैं कि ये सेफ्टी अश्योर्ड है, क्वालिटी अश्योर्ड है, मेंटेन हो रहा है कि नहीं. IEC and IRB में the lead investigator cannot be the one calling all the shots, ठीक है. The sponsor is very important. Like I said before, the sponsor, IRB and the principal investigator, 3 of them have to be in communication to make any decision. ठीक है. Now, this is just a small key that I made for you guys. आप बाद में बैठ के पढ़ भी सकते हैं. This is मैंने जो explain किया वही बात है, लेकिन मैंने इसको एक डाल दिया था. अच्छा, the important thing is कि इसमें मैंने एक लिंक दी है, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू. ये आप जब खोलेंगे तो आपके पास IRB और IEC के लिए गाइडलाइंस खुल जाएंगे दैट यू कैन रीड फर्दर.
अभी तक मैं बात कर रही थी, ठीक है. नाउ आई वांट द पार्टिसिपेंट्स कि प्लीज अपना खोले, माइक खोले, ठीक है. और IRB बेटा असल में हमारे पास इट इज नॉट जस्ट समथिंग दैट यू कैन राइट एंड लर्न, यू हैव टू एक्सरसाइज इट. ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप ये चीज नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते. ठीक है, हर इंसान के दिमाग में जो सवाल है वो बाहर आएगा तो एथिक्स इम्प्लीमेंट होगा. अच्छा, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड कंप्लायंस? हम एथिक्स किसको कहते हैं और कंप्लायंस किसको कहते हैं? I'm waiting for an answer. I'm sorry, maybe I wasn't clear. देखिए, एथिक्स तो हमारे पास है कि हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं. ठीक है, मेरे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने फॉलो करना है कि मेरा जबरदस्त किस्म का एथिकल रिसर्च निकला है. लेकिन कंप्लायंस क्या है? मैंने लिखा तो है कि भाई यस, पेशेंट ऑटोनॉमी मुझे देनी है, राइट्स वेव नहीं करने, मुझे पेशेंट के लिए बेस्ट सोचना है. लेकिन जब बात आती है मेरी रिसर्च के मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो मेरा होना चाहिए. तो मैं जो हूँ पेशेंट वही डालती हूँ जिससे मुझे पता है कि मेरा जो है टारगेट हाइपोथेसिस क्या आएगा. ठीक है, that is not compliance. Your Okay. ethics and your compliance should go hand in hand. IRB फॉर्म्स में सबसे बड़ी बात हमारे पास यही आती है. जब हम लोग बात करते हैं एथिक्स और कंप्लायंस की, तो वहां पे बात हो रही होती है कि हाँ, हम पेशेंट को ऑटोनॉमी देंगे, हमने कंसेंट फॉर्म साइन कराया था, हमने जो है उनको सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी थी, हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था. लेकिन जब कंप्लायंस की बात आती है तो एक खंडर होता है, एक बेड होता है, वहाँ पे पेशेंट आके दवाई लेके चला जाता है. ठीक है, तो ये कंप्लायंस नहीं है. यू शुड implement that your ethics is right and wrong. Yes, right, ethics is right and wrong. So basically, compliance is how much I am actually doing those things. Yes. Okay, okay, I Compliance got for it now. ILB are going hand in hand. Adherence to the laws. Okay, हाँ, नूर ने लिखा है. How do standard ethical practices for research vary among academic principles in social and behavioral science? वो एस्पेक्ट्स जो हम मेडिसिन में देखते हैं, क्या वो चीज हम लोग बिहेवियर किसी और का सोशल साइंस में? मुस्कान, कैन यू प्लीज चेक एंड म्यूट ऑल, क्योंकि किसी का माइक ऑन है मेरे ख्याल में, या आपके यहाँ कोई माइक ऑन है. एक बीच में क्रॉस टॉक आ रही है, अब खत्म हो गई है. ओके, गुड, सॉरी, गो अहेड. ओके, जब हम बात करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस की, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिसर्च जो है गाइडलाइंस हैं, क्या वो सोशल और बिहेवियरल साइंसेस दोनों को मिला के बनती है या हमारा बिल्कुल ही आइसोलेटेड है. ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो निकले ही फिलोसफी से. ठीक है, डू गुड, डू नॉट हार्म, बेनिफिट्स, रिस्क, ये सारी हमारी रिसर्च की फिलोसफिकल बातें हैं. इनको बहुत मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, आप बात एक कर रहे होते, इस तरह की बात है कि दिल साफ होना चाहिए. भाई दिल किस तरह साफ होना चाहिए? ठीक है, तो philosophy is very different, and but when you come towards implementation it is very different. ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड एथिकल प्रैक्टिसेस सोशल, बिहेवियरल और मेडिसिन में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. क्यों? क्योंकि जब हम लोग एथिकल बाउंड्स को देखते हैं तो हमने एक क्लिनिकल ट्रायल में बिहेवियरल साइंसेस और सोशल साइंसेस को भी उसके लॉज डालने हैं. हमने ये देखना है कि पेशेंट जो है, अगर द पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, हम उसको ऑटोनॉमी कैसे देंगे? हम पेशेंट को बोलेंगे यू आर अलाउड टू लीव. ठीक है, वी आर सो सॉरी, आपको इंजरी हो गई है, हियर इज द कंपनसेशन मनी. ठीक है, दैट वी टोल्ड यू, हियर इज द ट्रीटमेंट दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू. ठीक है, और अगर द बेस्ट केस सिनेरियो, हमारा रिसर्च इतना अच्छा होता है, हमारे पास बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम पेशेंट, हमारा बिहेवियर या सोशल एस्पेक्ट फॉर एथिकल बाउंड्स क्या होना चाहिए? वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू पोस्ट research
ट्रीटमेंट, ठीक है, बिकॉज यू नीड इट। ये सारी बातें हमें IRB में लिखनी है कि अगर रिसर्च खत्म हो गई तो क्या हम सेसेशन ऑफ ट्रीटमेंट कर देंगे, हम सेसेशन ऑफ ड्रग कर देंगे या नहीं, हमने आगे प्रोवाइड करना है। योर रिसर्च वैल्यू इंक्रीजेस विद एथिकल बाउंड्स, ठीक है, जितना आप एथिकल साउंड रिसर्च करेंगे उतनी आपकी रिसर्च वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, व्हेन इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिक्वायर्ड, ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन डाल दिया था, मैंने काफी सोची लेकिन आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट लॉट। अच्छा, दिस इज एन IRB टेम्पलेट, ठीक है, ये मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उठाया था। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कुड फाइंड, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? Okay, Mushkan, can you send the link in this chat box and in the group also? ये जो आपने लिंक दिखाया है ना, इसको कॉपी करके वहां भेज दो, व्हाट्सएप पे भी भेज दो और यहाँ भी भेज दो कि लोग अपने पास सेव कर लें। Yes, please. And I will send it. Okay. I'm actually done with my presentation. किसी को कोई question है, please come forward. किसी का कोई question है? So in the beginning, you said that there is an IHC, which is the International Harmony or Harmonized Committee, and then you mentioned something E6. Is it E6, like E as in England? Yes. International Harmonized Committee is actually, it is a very vast committee, and it is actually for E6. Let me explain that. अच्छा, E6 is a section of it, ठीक है। एक्चुअली इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड कमेटी जो है वो हर किस्म के हर प्रोफेशनल के लिए रिसर्च बायोएथिकल ग्राउंड्स बनाती है, ठीक है। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, अगर आप एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी और जनरल हर किसी के लिए एथिकल ग्राउंड्स बनाती है, एथिकल ग्राउंड्स बनाती है फॉर रिसर्च कंडक्शन। अब उसमें हमारे पास जो हम जनरल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, हम एज मेडिकल डॉक्टर्स या हम एज डेंटल डॉक्टर्स जो फॉलो करते हैं जो क्राइटेरिया, उसको अंडर डेक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, लेट मी राइट दिस हियर, डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, अंडर डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी सेक्शन E6, ठीक है, ये हमारे पास है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के प्रोटोकॉल्स। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज अ स्मॉल क्राइटेरिया फॉर एथिकल रिसर्च कंडक्शन दैट इंक्लूड ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है, क्योंकि हम एज मेडिकल डॉक्टर्स या डेंटल डॉक्टर्स हम क्या करते हैं, हमारा नीश या हमारा पॉपुलेशन ह्यूमंस होता है, ठीक है, हम सोचते हैं ह्यूमन बेनिफिट या ह्यूमन रिस्क फैक्टर्स, ह्यूमन एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के प्रोटोकॉल्स, ठीक है। बाकी भी हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट होगी जब हम इन विट्रो इन वीवो ट्रायल्स करेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्टली ह्यूमन प्रोटोकॉल्स को देखते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है good clinical practice, which is under E6 section. Is that clear? Yes, yes. We got that. Non-maleficence, अच्छा, non-maleficence बेटा हमारे पास होता है कि, अच्छा, maleficent intent is खराब intent, ठीक है, anything that you go with bad intention or your selfish intention, कि मेरा रिसर्च बहुत अच्छा हो जाए, आई डू नॉट केयर कि मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या हो, दैट इज अ maleficent intent. And ethically you are supposed to have a non-maleficent intent. आपका रिसर्च का इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ कि बेनिफिट हो, पार्टिसिपेंट्स का बेनिफिट हो,
पेशेंट्स आपके पास जो है डाउन सिंड्रोम के आते हैं, ठीक है, उनमें आप कोई फैक्टर चेक कर रहे हैं। अब आप उन पेशेंट्स को जो डाउन सिंड्रोम के हैं और आपको पता है कि कोई मेडिसिन देने के, फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स जो हैं वो आई थिंक ब्रूफेन नहीं ले सकते, ठीक है, उनका जो क्रोमोसोमल एनॉमली होती है डाउन सिंड्रोम में। तो अगर आप उनको ब्रूफेन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज योर मेलेफिशेंट इंटेंट, ठीक है, आप जानबूझ के उस पर वो प्रोवाइड करें ताकि आपको रिसर्च में फायदा हो, ठीक है। So you're not supposed to provide any drug, any intervention, or any investigational product to a patient that is vulnerable to it or might have a foreseeable risk. और may not even need it. That happens very frequently. हम लोग सिर्फ पेशेंट्स को एनरोल करने के लिए सारे काम कर रहे होते हैं। हम डाल रहे होते हैं धड़ाधड़ पेशेंट्स को कि ठीक है अच्छा आपके सर में दर्द है, और कुछ नहीं पूछते, और उनको ट्रायल में डालते हैं। हो सकता है वो स्ट्रोक का ट्रायल हो, आई मीन, बट ऑल वी आर लुकिंग फॉर इज समबडी विद अ हेडेक हु मे बी वल्नरेबल टू अ स्ट्रोक, चाहे वो स्ट्रोक का पेशेंट ना भी हो। उस बेचारे को हम डरा देंगे कि हो सकता है आपको स्ट्रोक हो रहा हो। Any more questions? मैं आप लोगों के साथ एक PDF फाइल शेयर करती हूँ which will help you understand these criterias better. लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको फिर पूरी पूरी पढ़नी होती है. These are very important. किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप साथ साथ पूछ सकते हैं. आईआरबी की मीटिंग ये अरेंज होती है. अच्छा, आईआरबी की मीटिंग जो होती है ना, दो होती है, ठीक है. वन इज विद द रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, जो रिसर्च कर रहा होता है उसके साथ और उसकी टीम के साथ. ये यूजुअली 10 to 12 डेज के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है. यू कैन नॉट टेक मोर टाइम, ठीक है, वरना वो वॉइड हो जाता है. और ईयरली नहीं, एवरी 6 months to 1 year एक अमंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आईआरबी की होनी चाहिए, ठीक है. उसमें आपने एक दूसरे को नोट्स देने होते हैं कि इस साल या इन 6 months में मैंने जो रिसर्च देखा था उसमें मेरे पास ये रिस्क फैक्टर्स आए हैं, ये बेनिफिट्स आए हैं, इतना मेरे पास पॉपुलेशन आया है, इन लोगों ने किया है, ठीक है. यूर एक्सचेंजिंग योर नोट्स, ठीक है. व्हाट हैपेंस, इट प्रोवाइड्स क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी. कल को आप जब आईआरबी की मीटिंग करेंगे तो आपके पास डाटा पड़ा हुआ हो कि हाँ मेरे पास पिछले साल इन रिसर्चेस पे ये डाटा आया था, एंड यू आर नॉट जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो 2 meetings, वन विद इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, उसकी पूरी टीम के साथ, दैट हैज टू बी डन इन 10 to 12 days. उसके बाद वरना वो टाइमलाइन वर्ड हो जाता है, यू हैव टू रीअप्लाई for the IRB meeting. And biannually or annually एक meeting among the participants of IRB. Okay. And one more important thing, if you're a member of IRB और आपके पास जो है रिसर्च आर्टिकल मिल गया है आपको और आपके पास कंडक्ट हो गया है, वो एज मॉनिटर्स आपने हमेशा प्रेजेंट रखना है अपना IRB फॉर्म प्रेमिसेस पे, जहाँ पे रिसर्च हो रहा है उस पे एट ऑल टाइम्स IRB एप्लीकेशन पड़ी रहेगी, ठीक है. और जब कंडक्ट हो जाए, ट्रायल कंप्लीट हो जाए, वो डाटा आपने 5 साल तक अपने पास रखना है. सम लिटरेचर सेज कि आप 3 साल तक रख सकते हैं, ठीक है, आप 3 साल तक रख सकते हैं, लेकिन 5 years इज बेटर, या 5 years तक उसको गिराए नहीं या उसको स्क्रैच ना करें. That's very important. I think all of us needed that. कि डाटा कितने अरसे तक हमने रखना होता है अगर in case we are asked for proof. So that is very important, I think. Thank you so much. I think the session is very, very beneficial. You are free to share other links and information in the WhatsApp group also. And if there are no more questions, then I will close the session.
ओके, लेट मी जस्ट सी। हाँ, आप मुझे होस्ट बना दें मुस्कान, ताकि फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह को स्टॉप कर सकूं। यस ओके, सो आई एम जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं अपने पे मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग का बटन नहीं नजर आ रहा, सो यू नीड टू गिव मी अ परमिशन। आई थिंक आप अपने पार्टिसिपेंट्स वाले टैब पर जाओ और वहां पे मुझे होस्ट बना दो। ओके